हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में और उसमें हम दो नई ग्लैंड्स पढ़ेंगे। जिसमें हम जो पहला ग्लैंड्स पढ़ने वाले हैं वो है एड्रीनल ग्लैंड, जो इमरजेंसी हार्मोन्स भी रिलीज करता है, और दूसरा है थाइमस ग्लैंड। ठीक है, तो हम आज दो ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे डिटेल में। लेट्स गो फर्दर। Now first we are going to talk about the adrenal gland. ठीक है, अब now let's say where is adrenal gland located? तो you can see that this is a kidney, right? ये किडनी है और ये किडनी के ऊपर this is a triangular shaped gland. What you call it as adrenal gland. And we have two kidneys, so naturally we will have pair adrenal glands. Okay, so here we have got pair of adrenal glands on the interior. Interior मतलब किडनी के ऊपर के भाग में adrenal gland होते हैं। अब इसकी अगर हम एनाटॉमी देखें तो एड्रीनल ग्लैंड को कवर करने वाला जो स्ट्रक्चर है, यू कैन सी इन द डायग्राम, इट इज नोन एज अ कैप्सूल. सो द स्ट्रक्चर दैट विच कवर्स द एड्रीनल ग्लैंड इज नोन एज कैप्सूल. Then the outer portion is called cortex. ठीक है, and the inner portion or inner tissue is called medulla. Medulla is rich in blood vessels. याद रखना, मेडुला के अंदर blood vessels बहुत ज्यादा होते हैं. So overall अगर हम एनाटॉमी देखें तो कैप्सूल, outer cortex and inner medulla. अब ये जो आउटर रीजन है कोर्टेक्स, दैट सिक्रीट्स कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन, जिसे हम कॉर्टिसोल्स भी कह सकते हैं, जो स्टेरॉइड नेचर के होते हैं. याद रखना, स्टेरॉइड नेचर के होते हैं. ठीक है, तो उसमें आ जाते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, जो मिनरल का बैलेंस करते हैं बॉडी में. अदर्स आर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, फैट्स एंड प्रोटीन्स. Further are sex corticoids. तो तीन डिफरेंट टाइप के हॉर्मोन्स जो बाहर के हिस्से में से, दैट इज कोर्टेक्स में से रिलीज होते हैं. सो आई वुड से दैट दिस पोर्शन, ओके, दिस पोर्शन रिलीजेस three different corticoids, three different kinds of steroids kind of hormone. Now inner is this medulla. ठीक है, ये जो medulla, जो inner portion है, that is releasing a hormone called adrenaline and non-adrenaline. ठीक है, adrenaline and non-adrenaline. उन्हें हमने क्या कहा है? कैटेकोलअमाइन्स. दे आर ग्रुप्ड एज, जैसे इसके ग्रुप को हमने कहा है कॉर्टिकॉइड्स, तो यहाँ पे हमने कहा है कैटेकोलअमाइन्स बिकॉज दे आर डिराइव्ड फ्रॉम एमिनो एसिड्स, राइट? From where they are derived? They are derived from amino acids. You can see this is the anatomy of the adrenal gland. अगर हम adrenal gland की बात करें तो वापस you can see that this is a kidney. Okay, इसके ऊपर ये triangular shape जो gland है, that is what you call it as the adrenal gland. In adrenal gland, the outer portion is known as adrenal cortex. The inner portion is known as adrenal medulla. ठीक है, अब अगर हम देखें ये जो कोर्टेक्स का पार्ट है, that is divided into, ठीक है, that is divided into three main regions. Those three regions are, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं कोर्टेक्स. अब ये कोर्टेक्स के तीन मेन रीजन्स है. The outer one is known as zona glomerulosa. याद रखना, ठीक है, जोन है जिसका नाम है ग्लोमेरुलोसा, और ये दो कैप्सूल है. सो यू डोंट हैव टू कंसिडर दिस. ये कैप्सूल मतलब एड्रीनल ग्लैंड का जो कवर होता है वो है. तो द नेक्स्ट कम्स, दिस पोर्शन इज नोन एज जोना ग्लोमेरुलोसा. उसके बाद दूसरा जो पोर्शन कोर्टेक्स के अंदर आता है, दैट इज नोन एज जोना फैसिक्युलाटा, दिस वन. सो this outer middle one is known as zona fasciculata. Outer one is known as zona glomerulosa, and the inner one, this portion, dark brown color, you can see that this portion is known as zona reticularis. What is it called? Zona
रेटिकुलरिस। मतलब cortex is divided into three main regions, that is zona glomerulosa, zona fasciculata and zona reticularis. Apart from that, the middle portion is known as medulla. And now you can see that this portion itself, this much portion is known as adrenal medulla. So just remember that cortex के 3 पार्ट होते हैं and medulla सिर्फ खुद एक ही पार्ट में होता है, that is shown over here in a dark green, dark brown color. Alright, so this is the anatomy of the adrenal gland. Now the inner tissue adrenal medulla, ओके अंदर का जो हमने देखा दैट इज नोन एज एड्रीनल मेडुला, जो अंदर की तरफ है, दैट इज सिक्रेटिंग टू डिफरेंट हॉर्मोन्स. दे आर कॉल्ड एज कैटेकोलेमाइन्स बिकॉज आई टोल्ड यू दैट दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एमिनो एसिड. अमाइंस का मतलब होता है एमिनो एसिड. ओके सो तो वो एमिनो एसिड्स में से बने हुए हार्मोन हैं, इसी वजह से हम उन्हें कहते हैं कैटेकोलेमाइन्स. और they are also called as emergency hormones. क्यों हम इन्हें इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं? क्योंकि जब भी हमारी बॉडी एक इमरजेंसी कंडीशन में होती है, लेट्स से दैट अभी हम घबराए हुए हैं या फिर हम कभी स्ट्रेस में हैं, तो बॉडी उस सिचुएशन में हमारी बॉडी में इमरजेंसी हार्मोन्स रिलीज करती हैं, जिसे हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड के मेड्यूलरी हार्मोन्स. ओके सो इट इज कॉल्ड एज एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन. दो नाम है, उसे हम एड्रेनालिन भी कह सकते हैं या तो फिर एपिनेफ्रिन भी कह सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरा जो हार्मोन है उसका नाम है नॉर एपिनेफ्रिन और नॉन एड्रेनालिन. तो ये दोनों ही नेम सेम ही है, तो एक ही हार्मोन के दो नाम है. ओके सो एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, ओके एंड नॉर एपिनेफ्रिन. ठीक है, तो यू कैन से दैट दो हॉर्मोन्स है, एड्रेनालिन और उसका दूसरा नाम, नॉर एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम. अब नाउ दीज आर रिलीज, आई टोल्ड यू दैट ये कब रिलीज होते हैं? हमारी बॉडी की इमरजेंसी कंडीशंस में. जैसे हम ऐसे कुछ देख लेते हैं और हमारे हेयर्स कभी कभी खड़े हो जाते हैं, राइट, बॉडी के हेयर से इरेक्ट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या रिलीज हुआ है? एड्रीनल ग्लैंड. लेट्स से सपोज अर्थक्वेक का आया और सडनली हमारी बॉडी एकदम से शॉक में चली जाती है, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी को बैलेंस कौन करता है? तो वी कैन से दैट इट इज डन बाय द एड्रीनल ग्लैंड. ओके, तो इमरजेंसी हार्मोन्स भी इसीलिए इन्हें कहा गया है, या तो फिर फाइट और फ्लाइट कंडीशन, जैसे उस सिचुएशन में हम फाइट करें या भाग जाए. ओके तो उस कंडीशन में भी हमारी बॉडी में यही हार्मोन्स रिलीज होते हैं. नाउ व्हाट आर द रोल ऑफ दिस हार्मोन? मतलब अगर ये जब बॉडी में रिलीज होते हैं तो ये क्या करते हैं? ये हमें और अलर्ट कर देते हैं, राइट, और एक्टिव कर देते हैं, क्योंकि हम शॉक में होते हैं, इस वजह से वो हमें अलर्ट करने की ट्राई करते हैं. द नेक्स्ट इज हमारी जो प्यूपिल होता है आई के अंदर, दैट गेट्स डायलेटेड, वो ब्रॉड हो जाता है. Pilo erection, I told you pilo erection means what? Raising of hairs. Okay, it's like goosebumps. Then the another role is it gives you sweating, increase heartbeat. If the heartbeat increases, our heart gets more workload and rate of respiration also increases. Ultimately it can increase your blood pressure also. ठीक है, तो ये जो functions हैं, ये किसके functions हैं? एड्रीनल ग्लैंड के मेड्यूला के दो हार्मोन्स, जिसे हमने कहा है एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन, या नॉर एपिनेफ्रिन एंड नॉर एड्रेनालिन. ऑल्सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन. ठीक है, मतलब क्योंकि हमें ये जब सिचुएशन आती है, ये इंक्रीज अलर्टनेस वगैरह, राइट, तो इस सिचुएशन में हमें ग्लूकोज की या फिर एनर्जी की जरूरत पड़ती है. तो एनर्जी हमें ग्लूकोज में से मिलेगी और ग्लूकोज हमें ग्लाइकोजन में से मिलेगा. सो इट ब्रेक्स डाउन द ग्लाइकोजन और इसमें से वो बनाता है ग्लूकोज, याद रखना. तो ये हार्मोन हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल भी इंक्रीज करता है. अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स टू, राइट. तो ये फंक्शन था एड्रीनल मेडुला का, या फिर हम कह सकते हैं कि मेड्यूलरी हार्मोन्स का. Now in the next we are going to talk about adrenal cortex.
ठीक है। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स रिलीजेस मेनी हॉर्मोन्स, 3 डिफरेंट हॉर्मोन्स कॉल्ड कॉर्टिकॉइड्स। पर्टिकुलरली हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की यहाँ पे बात करेंगे। Now we can see that this is the diagram, ये हमने previous में भी देखा। The outermost layer is called as zona glomerulosa, ठीक है। बाहर का जो कोर्टेक्स का पार्ट है उसे हमने कहा है जोना ग्लोमेरुलोसा। Now it secretes the hormones called mineralocorticoids। कौन से हॉर्मोन्स रिलीज करता है जोना ग्लोमेरुलोसा कोर्टेक्स का? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। उसमें मेन होता है आल्डोस्टेरॉन। क्या होता है मेन? आल्डोस्टेरॉन। और ये बॉडी के सॉल्ट को और वाटर लेवल को बैलेंस करता है। यू कैन से दैट इट रेगुलेट्स ऑस्मोरेगुलेशन। ओके, इट इज द फंक्शन इज ऑस्मोरेगुलेशन एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो रेगुलेट्स द ब्लड प्रेशर। मतलब ये मेन किसके ऊपर रोल करता है? इट प्ले वाइटल रोल ऑन किडनी। ओके, ये किडनी के ऊपर फंक्शन करता है और आपको पता है इसका लोकेशन भी किडनी के ऊपर ही है। सो इट इज समवेयर, यू कैन से दैट it is having an influence on your kidney। वाटर और सॉल्ट के लेवल को बैलेंस करना। मिनरल्स का मतलब होता है सॉल्ट, सो ओनली इट इज नोन एज mineralocorticoids। Now after that we will talk about the next hormone, next area that is known as zona fasciculata, middle layer that is known as zona fasciculata। In this the function is response to illness। ठीक है, सबसे पहले ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होते हैं एंड व्हाट डज इट डू? हमारे इलनेस में, मतलब अगर हम बीमार हैं तो उसमें वो रिस्पॉन्स देते हैं। देन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अगेन मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, फैट्स एंड प्रोटीन्स। बेटा ये याद रखना, यहाँ से आपको वर्ड मिल रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मतलब ये कहीं ना कहीं ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ओके, सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लूकोज प्रोडक्शन। और ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, मतलब स्वेलिंग हमारी बॉडी में अगर आ जाता है, लेट्स से इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है स्वेलिंग। सो अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, दैट इज ऑल्सो बीन रिमूव्ड बाय दिस काइंड ऑफ हॉर्मोन्स जिसे हम कॉर्टिसोल्स कहते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट ये एंटी एलर्जिक भी होता है कि अगर बॉडी में एलर्जी प्रोड्यूस हुई है तो एलर्जी को वो सप्रेस करने की ट्राई करता है। ओके, इट ऑल्सो ट्राई टू सप्रेस द एलर्जी। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ जोना फेसिक्युलाटा, जो सिक्रीट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ओके, एंड द लास्ट वन is known as the zona reticularis। zona reticularis सबसे अंदर वाला पोर्शन है, तो it is known as inner portion। so I just write over here that ये जो है ये outer portion है zona reticularis। I'll just write OU, that means outer portion। ठीक है, next जो है that is zona reticulara, zona fasciculata, then that is the middle portion। so I'll just write MI। बाहर से देखें तो ये middle है, और जो last है that is the अंदर वाला portion and that's what you call it as inner portion, IN। ये कौन है? ये है zona reticularis। तो zona reticularis इसके साथ में मिलकर, याद रखना ये, ठीक है, ये दोनों ही मिलकर एक दूसरा हार्मोन रिलीज करते हैं जिसे हम एंड्रोजेंस भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। तो रिमेंबर दैट जोना रेटिकुलरिस एंड जोना, वी कैन से दैट जोना फेसिकुलाटा, दोनों मिल के ही एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम है एंड्रोजेंस या तो फिर सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। पर्टिकुलरली हियर याद रखना, मेल का सेक्स हार्मोन होता है रिलीज टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, इट रिलीजेज अ मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरॉन। मतलब एड्रीनल ग्लैंड तो मेल और फीमेल दोनों में ही है, रिमेंबर दैट। तो टेस्टोस्टेरॉन यस दोनों में ही रिलीज होता है, मेल में भी फीमेल में भी, लेकिन मेल में उसका अमाउंट बहुत ज्यादा है और फीमेल में कम है। फीमेल में बॉडी हेयर्स होते हैं, जैसे कि अपर लिप्स वगैरह हो जाता है कभी कभी, ठीक है, तो वो प्यूबर्टी मतलब सेक्सुअल मैच्योरेशन 13-14 की एज के बाद
फीमेल में जो हेयर्स ग्रो होते हैं, प्यूबिक हेयर्स है या तो फिर हम कहें फेशियल हेयर्स है, वो टेस्टोस्टेरॉन की वजह से होते हैं। और वो कौन सा टेस्टोस्टेरॉन है? एड्रीनल ग्लैंड में से रिलीज हुआ टेस्टोस्टेरॉन। तो यस, फीमेल ऑल्सो हैव अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। और मेल के अंदर ये चाइल्डहुड में सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। सो दिस इज द फंक्शन, मतलब you can say that it is responsible for the secondary sexual characteristics. So overall, we can say that cortex releases 3 different hormone: mineralocorticoids, glucocorticoids, and sex corticoids. Disease related with adrenal gland, we will study about 2 diseases. The first is the Addison's disease. जो अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कम हो रहा है, लेट्स से अल्डोस्टेरॉन बॉडी में डेफिशिएंट है, तो किडनी विल लूज एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सॉल्ट, बॉडी में से सॉल्ट्स लूज हो जाएंगे और वाटर का लॉस हो जाएगा। इट कैन लीड टू सिवियर डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशन, जैसे कि वॉमिटिंग है, डायरिया है, हो सकता है, और बॉडी का ब्लड प्रेशर नीचे गिरेगा। दैट मीन्स इट विल रिजल्ट इनटू द लो ब्लड प्रेशर. So this is the Addison's disease. Remember that it is because of the deficiency of mineralocorticoids. Next we will talk about excess cortisols. Let's say glucocorticoids अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, तो it will result into a condition called Cushing syndrome. In Cushing syndrome, what are we going to suffer from? We will suffer from weight gain, okay, and फैटी टिश्यू डिपॉजिट हो जाएगा। जो भी बॉडी में फैट्स होते हैं वो यहाँ पे बॉडी में डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है, और ग्लूकोज और फैट और प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा वेट गेन हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट द डिसीज विच इज रिलेटेड विथ एड्रीनल ग्लैंड. सो टुडे वी स्टडीड अबाउट एड्रीनल ग्लैंड. नाउ नेक्स्ट we are going to talk about the another gland, that is what you call it as the thymus gland. ठीक है, अब thymus gland is known as throne of immunity, or it is also called as crown of immunity. Okay, crown मतलब you know the one which controls everything, जैसे कि king के पास crown होता है. फिर throne मतलब the main seat where the king sits is known as the throne. तो इम्यूनिटी का मेन जनरेशन पॉइंट होता है, वो होता है थाइमस ग्लैंड. अब इसका लोकेशन आप देखो तो यहाँ पे हमारा एक बोन होता है जिसे हम कहते हैं स्टर्नम. तो एग्जैक्टली स्टर्नम के पीछे हमारा एक छोटा सा पिंक कलर्ड लोब्यूलेटेड ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं थाइमस ग्लैंड. ओके, सो इट इज लोकेटेड बिहाइंड द स्टर्नम इन द थोरैकिक कैविटी, मतलब रिब केज के अंदर. इट रिलीजेज अ पेप्टाइड नेचर हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन. इसके हार्मोन का नाम क्या है? थाइमोसिन. तो थाइमोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टी सेल डेवलपमेंट. नाउ व्हाट इज दिस टी सेल? दिस आर अ काइंड ऑफ लिम्फोसाइट्स. ओके, लिम्फोसाइट्स कौन से होते हैं? यू नो दैट एक टाइप के सेल्स होते हैं, राइट? लिम्फोसाइट्स आर अ काइंड ऑफ WBC. जो थाइमस में मैच्योर होते हैं they are known as T lymphocytes. Okay, T cells are basically T lymphocytes. So just write over here, these are known as T lymphocytes. Remember this. Okay, तो ये टी लिम्फोसाइट्स होते हैं एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. मतलब टी सेल हमें जो कुछ भी इम्यूनिटी देता है वो किसकी वजह से देता है? क्योंकि टी सेल को डेवलप ही, मैच्योर ही थाइमोसिन करता है. तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर टी सेल एंटीबॉडी प्रोडक्शन कर रहा है या हेल्प कर रहा है तो उसमें भी इसका हेल्प होता है. सो इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी. So it is responsible for 2 different kinds of immunity, that is cell mediated immunity or antibody mediated immunity. अब ये एंटीबॉडी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन जब एंटर होता है, लेट्स से कि कोई बीमारी वाला बैक्टीरिया एंटर हुआ, तो उसे ही किल करने के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है.
तो वो एंटीबॉडी किसके, कौन से हार्मोन की इन्फ्लुएंस में होती है, थाइमोसिन के। तो यू कैन सी दैट कि ये ज़्यादातर इम्यूनिटी से रिलेटेड है, इसीलिए हमने कहा है इसे थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी और क्राउन ऑफ इम्यूनिटी। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नोट दिस आउट, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, कि हमारी एज के साथ, ओके, एज अवर एज बढ़ती है, ओके, विथ एज, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है इसकी साइज डिक्रीज होती है। विथ एजिंग द साइज डिक्रीजेस, किसकी साइज डिक्रीज होती है, थाइमस ग्लैंड की। मतलब ये क्या हो जाता है, एट्रोफिड होता है। एट्रोफिड मतलब जिसकी साइज कम होना, ठीक है, या डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाता है। तो हम जब ओल्ड एज हो जाते हैं, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, तब इसकी साइज एकदम ही कम हो जाती है और हमारी इम्यूनिटी भी इसी वजह से कम हो जाती है। तो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि एज वी स्टार्ट एजिंग द साइज ऑफ थाइमस ग्लैंड decreases and so our immunity also decreases at the old age। ये बहुत ही important point है और याद रखना। So today we studied about two glands, that is adrenal gland and thymus gland, okay। In the next lecture we will be talking about two different glands more, pancreas and gonads, और gonads में हम study करेंगे two more structures, that is testes and ovaries। So this was all about today's lecture।